Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. Today for this session we are going to deal with the topic how to study and master science in the easiest and the best way. A lot of you might be like very confused when it comes to science, because some people think that science is a subject that you can never learn. But here I am with this video on tips to master science, and please do not forget to watch this video till the end, because I promise till the end you are going to learn at least a thing or a point, and you are going to take out mistakes that you are actually doing and you need to correct those mistakes, because if you keep doing those mistakes then you're never going to master or learn science. And here I am with the easiest and the best ways. So guys, before beginning, as usual, a very beautiful quote given by the great Albert Einstein: imagination is more important than knowledge. Why is it so? Because knowledge is limited but imagination encircles the world. Now beginning with the session. Very first thing is basics. Now what is basics? Guys, basics means the concepts that you are learning in 6th to 8th grade are your science ke basics. They are very important. What happens, what happens with these concepts? That for example in 6th to 8th grade you have, for example in 6th to 8th grade you have learned the chapter, in 7th grade chemistry you have learned the chapter acid, bases and salt, isn't it? Yeah, of course you might have learned it, right? If you are in 7th grade, you of course you have learned it. Okay, acid, bases and salt. That chapter will be only extended when you are going to go in class 10. जब आप class 10 में जाओगे, that particular same chapter is going to be extended. Okay, so like अगर आपका basic इतना अच्छा है तो फिर class 10th में you are not going to face many problems, because then after you are gonna be growing, फिर आप अपना basic के बाद foundation भी अच्छा कर लोगे. You know what? बिल्डिंग का सबसे पहले ना ये बेस अच्छा होना चाहिए, तभी अगर आप बिल्डिंग बनाओगे तो सही रहेगी. नहीं तो अगर ये बेस ही टूटा फूटा है तो बिल्डिंग पूरी की पूरी गिर जाएगी. तो इफ यू वांट टू मेक द बिल्डिंग देन सबसे पहले अपनी फाउंडेशन अच्छी करो बिल्डिंग की, ठीक है. और क्लास 6 to 8 का साइंस बहुत इंपॉर्टेंट. अब क्लास 6 to 8 के साइंस में काफ़ी ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ऑफकोर्स होते हैं. अगर आप क्लास 9th में हो, फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार साइंस में वीक हूँ, मुझे क्लास 6 to 8 की समरी लेनी पड़ेगी, या फिर आप कोई सी भी एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीएससी की और आपको 6 to 8 ग्रेड साइंस की समरी चाहिए, ठीक है. इफ़ यू वांट समरी, ऑफ कोर्स वो बोलता है कि क्या आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है 6 to 8 ग्रेड का या फिर 9th and 10th ग्रेड का, क्योंकि इसकी समरी होती है इंपॉर्टेंट. तो आप सबको क्या करना है, बस कुछ नहीं, बस एक ही वर्क है जो आप सबको करना है, एंड दैट इज दैट आपको मेरे सेशंस देखने हैं बियॉन्ड एनसीईआरटी के. बियॉन्ड एनसीईआरटी के सेशंस में मैंने वही चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं जो इंपॉर्टेंट रखते हैं बहुत ज़्यादा, और उनको बियॉन्ड एनसीईआरटी भी पढ़ाया है, मतलब द बेस्ट वे. बेसिक से लेके हम लोगों ने हाई लेवल तक पढ़ा है. तो पूरी प्लेलिस्ट होगी मेरी बियॉन्ड एनसीईआरटी की, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. सो गाइज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट, और अगर आपको समरी करनी है तो कर लें. तो ये तो बात हो गई यार कि 6 to 8 ग्रेड का साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है. उसमें तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है. वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आपको 6 to 8 ग्रेड का आता है देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल. बिकॉज फिर अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रेड 8 में सेल का चैप्टर पढ़ लिया है, वो आया है एनसीईआरटी में, ग्रेड 9 में जाओगे तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा ना कि सेल क्या है, स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है और गैनल्स क्या होता है. मतलब 9th क्लास में यार आपके पास सिर्फ 50% वेटेज होगा. इसका ये मतलब है कि अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी 6 to 8 ग्रेड का पढ़ ही रखा है तो आपको क्या होगा, जब आप दूसरे ग्रेड्स में जाओगे तो बस 50% वेटेज, और 50% की जो वेटेज थी वो तो आपने धीरे धीरे करके 6 to 8 ग्रेड में ही निकाल डाली है. ये होता है. सेकेंडली, डज नॉट कंफ्यूज यू इन हायर ग्रेड्स. आगे के ग्रेड्स में जाते हो तो पहले आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा. जैसे टिश्यूज का चैप्टर आ गया, ठीक है, टिश्यूज का चैप्टर आ गया तो आपको कभी ये नहीं रहेगा कि यार टिश्यूज एक्चुअली होते क्या है. तो टिश्यूज सेल से बनते, सेल क्या होता है, तो यार ये चीज़ें ना कंफ्यूज नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल क्लास 10 में एक बार में चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है. मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख रही हूँ लाइफ प्रोसेसेस. अब वो चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, और अगर आपने ग्रेड 6 to 8 में जो मैम ने आपको सारे बॉडी सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया है वो पढ़ रखा है, क्लास 6 to 8 में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और एनिमल्स एंड प्लांट्स. फिर आप लोगों ने पढ़ लिया एक्सक्रीटरी सिस्टम, आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया. 7th और 8th स्टैंडर्ड में प्लांट्स और एनिमल्स का सेपरेटली आया था. तो
स्केलेटल सिस्टम आपने 6th ग्रेड में पढ़ लिया, तो ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ रखी है। मतलब लाइफ प्रोसेसेस का वो जो चैप्टर है उसका सिर्फ 50% वेटेज ही आप पे पड़ेगा अगर आपको चीज़ें याद भी रहेंगी तो यार ये होता है, ये आप सबके साथ होता है। तो हायर ग्रेड में कभी आप कंफ्यूज तो होगे नहीं। और अगर आप ग्रेड 9th में हो तो अगर अभी आप 9th और 10th ग्रेड में अगर आप सुधर जाओगे तो गाइज 11th और 12th ग्रेड में तो बिल्कुल 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 प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इट्स नॉट अ बिग जंप यार। 9th और 10th से 11 एंड 12 में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों को लगती है, वाई डू यू नो, बिकॉज उन्होंने पढ़ रखा नहीं होता है, 9th एंड 10th ग्रेड में पढ़ाई नहीं करी होती है। और एक और बात जो मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि यार अगर आप 6 to 8 ग्रेड में हो तो 6 to 8 ग्रेड का अच्छे से और ढंग से पढ़ लो, बिकॉज आगे के ग्रेड में बहुत काम आएंगे। और एक्चुअली अगर आप 8 ग्रेड में हो तो 6 और 7 ग्रेड की समरी लेना चाहते हो तो फटाफट से गो एंड टेक इट नाउ, बिकॉज 8 ग्रेड आपको लास्ट साल है जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से सुधर सकते हो। मतलब एक साल अभी आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप ग्रेड 9 में जाके आप मेहनत करने की सोच रहे हो तो यार आप ग्रेड 9 में मेहनत जाके करोगे तो ग्रेड 9 का आपको हैवी पढ़ने लगेगा। इससे अच्छा अगर आप 8 ग्रेड में सुधर जा रहे हो तो ग्रेड 9 का आपको हैवी नहीं पड़ेगा, मतलब 50% वेटेज आपके पास होगी बस सिलेबस की। नेक्स्टली गाइस, टॉपिक्स आर फर्दर गोइंग टू बी एक्सटेंडेड ऑफ ग्रेड 6 to 8। मतलब वही जो मैंने बोला, क्लास 8 में एक चैप्टर आया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10 में वही आ जाएगा केमिस्ट्री में एक्सटेंड होके। उसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है तो क्लास 10 में फिर वही सेम चैप्टर एक्सटेंड होके आएगा और आगे का, यही है, कुछ नहीं। क्लास 7 और क्लास 8 में आपने रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 7 और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो कि आपने पढ़ा था क्लास 8 में, ठीक है। तो अब ये दोनों जो चैप्टर्स हैं रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा ना एक्सटेंड होकर क्लास 10 में फिर से आएगा कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इस तरह से आते हैं आपके चैप्टर, तो इस तरह से आपको पढ़ने होते हैं उनको। तो हायर ग्रेड से बस वो 6 to 8 के कॉन्सेप्ट एक्सटेंड होके आएंगे, हाँ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी आपको पढ़ने मिलेंगे, लेकिन क्योंकि आपका बेस बहुत अच्छा है तो फाउंडेशन तो एकदम तगड़ा बनने वाला है। इफ़ यू वांट टू स्टडी साइंस सो नेवर मिस क्लास 9। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो क्लास 9 का साइंस खासकर मिस तो करना नहीं है। गलती से भी अगर आपने ये कर दिया तो यू हैव डन अ वेरी बिग मिस्टेक। क्लास 9 का साइंस मिस नहीं करना, बिकॉज क्लास 9 का साइंस होता है ना, क्लास 6 to 8 तक तो हम लोग साइंस पढ़ रहे होते हैं, ऑल इन कॉमन से बेस बना रहे होते हैं। क्लास 9 से हमारा स्टार्ट होता है पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्लास 9 से स्टार्ट होता है। मतलब अगर क्लास 9 में आपने बेसिक एकदम पढ़ लिया जो पढ़ाए जा रहे हैं आपको, तो क्या ही है, क्लास 10 में तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कब परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। बोर्ड्स कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है, उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपने दिमाग में बैठाने की ज़रूरत नहीं है, ईजी होगा यार। अगर आप क्लास 9 में अपने कॉन्सेप्ट्स को ऊपर से झाड़ा नहीं है, अगर आपने उसको डीप से पढ़ा है तो क्लास 10 तो इट्स लाइक आप उसको बहुत ईजीली क्रैक कर लोगे। और फिर जब बात आती है क्लास 11 है 12 जेई नीट कुछ कम करना है आपको आगे के फ्यूचर में, आपको कुछ भी ऐसी साइंस को लेकर स्ट्रीम करनी है तो दिक्कत की तो बात ही नहीं है। तो 9th और 10 में बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, 9th और 10th से सुधर जाना है, 6 और 8 ग्रेड में फाउंडेशन अच्छी बनानी है, फिर आपका फ्यूचर सेट है, ठीक है। क्योंकि वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा पूरी लाइफ, बट अगर पहले आपको 100% वर्क करना पड़ रहा है तो आप उसके कंपेरेटिवली अगर आपका बेस अच्छा है तो 50% ही वर्क करना पड़ेगा आप सबको। Guys, moving on to our another topic, that is understanding instead of learning. Science कभी भी learning का नहीं होता. You do not have to learn science. Actually, you have to go to understand science, because if you tend to learn or if you try to learn science even, यार साइंस में होता है 30% वेटेज, ठीक है, 30 to 40% वेटेज, 30 to 40% वेटेज होता है लर्निंग का, वो याद रख लो, लर्न कर लो। लेकिन बाकी का जो वेटेज होता है वो प्रैक्टिकल होता है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। आप किस तरह से समझ रहे हो, किस तरह से आप क्रिएट कर पा रहे हो, किस तरह से एनालाइज और अप्लाई कर पा रहे हो। तो इसीलिए ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा वेट ना साइंस में अंडरस्टैंडिंग का ही होता है। अगर मैं बोलूँ तो साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज अंडरस्टैंडिंग की ही होती है, बाकी सबकी वेटेज कम होती है। तो लर्न करने से अच्छा आप चीज़ों को रटो ना, इससे अच्छा क्या यार आप चीज़ों को समझ के तो देखो, अपने आप वो आपको याद होने लग जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड साइंस। गाइस, मूविंग ऑन,
हमेशा ना साइंस के बारे में क्यूरियस रहना है। आपको क्यूरियस क्यों रहना है? बिकॉज साइंस इज नॉट ओनली दैट यू स्टडी इन योर बुक्स। आप अपने बुक्स में जो पढ़ते हो सिर्फ वो उतना साइंस नहीं है। साइंस इज एवरीथिंग अराउंड यू, हर वो चीज़ जो आपके आसपास है। आप जो भी डिवाइस में मेरी ये वीडियो देख रहे हो वो उसके पीछे साइंस है कि हाउ डज इट एक्चुअली वर्क, वो कैसे बना है, कैसे लोगों ने उसको बनाया है। ठीक है, मैं जिस डिवाइस में वीडियो बना रही हूँ उसके पीछे भी साइंस है। आपके पास स्काई है, स्काई इज ब्लू, उसके पीछे भी साइंस है। ठीक है, आप है ना, हमें मतलब ग्रेविटी आपने हमेशा पढ़ा होगा। ग्रेविटी इज ऑल्सो समथिंग दैट्स साइंटिफिक। मतलब हर चीज़ आप खुद साइंटिफिक हो, आपके अंदर खुद बहुत सारा साइंस भरा है, बायोलॉजी भरा है, केमिस्ट्री भरा है, फिजिक्स भरा है, हर चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका साइंस है ना, हमेशा इंटरेस्ट के लिए पढ़ो। अगर आप उसको सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो फॉर सेक ऑफ लर्निंग, तो यू विल नेवर बी एबल टू लर्न साइंस। नेवर लर्न साइंस फॉर सेक ऑफ लर्निंग। उसको इंटरेस्ट से पढ़ो, गेन नॉलेज करने के लिए पढ़ो। नॉलेज गेन करने के लिए बेसिकली पढ़ना है। अब नेक्स्ट है कीप एन आइडिया अपॉन द 3 कैटेगरीज ऑफ साइंस, जो क्या होते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब फिजिक्स क्या है यार? फिजिक्स जो होती है ना, आप फिजिक्स में ग्रेविटी पढ़ रहे हो, मोशन पढ़ रहे हो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, फिर आप ना फिजिक्स में इस टाइप के बहुत सारे चैप्टर्स, वेक्टर्स पढ़ लिए आपने, वो सारे फिजिक्स में आ रहे हैं। केमिस्ट्री में आप कोर्स नाम से पता चल रहा है केमिकल से रिलेटेड, उसमें आप ना एटम्स के बारे में पढ़ रहे हो, मैटर के बारे में पढ़ रहे हो, मैटर एंड मटीरियल्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी केमिस्ट्री में आ गई। आप केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हो। बायोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट विद लाइफ, इसमें आप लाइफ के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, ज़िंदगी जो चल रही है, ठीक है, उसके बारे में आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। बॉडी सिस्टम्स पढ़ लिए, प्लांट्स के बारे में पढ़ा, सेल्स, टिश्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यार इन तीनों में डिफरेंस है। बायोलॉजी में जो सेल है, बायोलॉजी का सेल है, वो आपकी बॉडी के अंदर का सेल है, लेकिन वो सेल अगर फिजिक्स में जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाला सेल, बैटरी जो बनते हैं, बहुत सारे सेल्स मिला के बैटरी बनाते हैं, वो हो जाएगा। तो यार डिफरेंस ना तीनों ही सब्जेक्ट्स में होती है, बट यू हैव टू कीप अ चेक अपॉन देन। उनके ऊपर आइडिया रखना है कि हाँ, आपको एटलीस्ट चैप्टर देख के पता तो चल जाना चाहिए कि ये चैप्टर फिजिक्स का है, ये चैप्टर केमिस्ट्री का है, ये चैप्टर बायोलॉजी का है, तो इतना आपको पता चल जाना चाहिए एटलीस्ट। तो आप इनके डेफिनेशन सर्च करो, इसके बारे में थोड़ा ऑनलाइन जानने की कोशिश करो। इफ़ यू डोंट नो दैट, मेक नोट्स ऑफ ईच चैप्टर टू योरसेल्फ। हर चैप्टर के नोट्स खुद से बनाना है। साइंस के खुद से बनाओ या फिर डिटेल नोट्स ऑनलाइन ढूंढो। ऑनलाइन भी आपको बहुत अच्छे डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। कैसे बनाना है खुद से इफेक्टिव नोट्स, मेरी वीडियो है हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स की, ठीक है, हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स की मेरी एक वीडियो है, वो वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखें गाइस। उसमें मैंने बताया कि आप कैसे बहुत अच्छी नोट्स खुद से बना सकते हो, और हर तरह की प्रेफरेंस उसमें मैंने रिकमेंडेशन भर दी है। नाउ गाइस वी आर गोइंग टू डील विद द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग अ चैप्टर। साइंस में अगर आपको एक चैप्टर पढ़ना है तो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू आपको जाना होता है। बहुत ईजी है, ध्यान से बस इसको देखो। पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, मेरी एक वीडियो का नाम है बेस्ट एजुकेशनल चैनल्स फॉर ग्रेड 6 to 8, और दूसरी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो थी बेस्ट एजुकेशनल चैनल्स फॉर ग्रेड 9th and 10th। मतलब 6 to 10 के मैंने बेस्ट एजुकेशनल चैनल्स बता दिए। उसमें मैंने बताया है उन चैनल्स के नाम जो कि आपको साइंस कंप्लीटली इस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर जो आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ ये वो वीडियोस आप जाके ज़रूर देखें। एक चीज़ बोलना चाहूँगी इसके रिलेटेड, कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, कि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो भाई आपका हर चीज़ अच्छा हो जाएगा। एक से बस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अप्लाई करना है, आपको क्वेश्चंस पे लॉजिक लगानी है, दैट्स इट। लेकिन आपका अच्छा, अगर आप लॉजिक भी नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कम से कम वो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे जो कॉन्सेप्ट एकदम डायरेक्टली पूछो, मतलब 50% तो आपका हो गया। पर आप लॉजिक भी लगाने की कोशिश कर रहे हो तो 100% बन गया यार, ठीक है, 100% तो आपका बन जा रहा है। प्रॉब्लम ही क्या उठ रही है यहाँ पे? तो हमेशा याद रखना कि कॉन्सेप्ट इज पावर, इसीलिए कॉन्सेप्ट को हमेशा स्मूथ रखना है। दूसरा है कि टीचर मैटर्स। आपकी टीचर कैसा पढ़ा रही है मैटर करता है। आपकी टीचर जिस तरीके से पढ़ा रही है मैटर करता है। आपके स्कूल के टीचर कितने भी पैसे ले रही हो, कितना भी अच्छा पढ़ा रही हो, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रही हो ना,
तभी आप 50% ही आपका माइंड उसको रिटेन कर पाता है, बाकी का 50% आप ऑनलाइन पढ़ोगे। यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे ही उन चैनल्स के मैंने नाम बताए हैं 6 to 10 के लिए 2 वीडियोस बना के। अगर आप 6 to 8 ग्रेड में है तो ये वीडियो देखें, 6 to 9, 10 ग्रेड में है तो ये वीडियो देख लें, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगी कि टीचर्स मैटर की भी नीड खत्म हो गई। मतलब यार अगर आपने ये 2 नीड खत्म कर ली तो पूरा चैप्टर तो आपने पढ़ लिया। मतलब ये प्रोसेस को देखने की पहली बात ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये प्रोसेस को एकदम ध्यान से देखो। आपकी जो टीचर होगी पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगी, इसीलिए हमने बोला है कॉन्सेप्ट इज पावर एंड टीचर मैटर्स। ये दोनों तो आपका यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट है नोट्स। नोट्स खुद से बनाने। अगर आपकी टीचर होगी तो वो नोट्स आपसे बनवाएगी भी, और नहीं बनवा रही है तो टीचर जो पीपीटी, जो प्रेजेंटेशन, जो सेशन पीडीएफ आपको दिखा रही है, वो सेशन पीडीएफ खुद में ही नोट्स है। उनमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल के आपको नोट्स बनाने हैं, उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल के आपको नोट्स बनाने होते हैं। तो नोट्स भी आपके बन गए, ठीक है। आपको टीचर ये नोट्स बनवाएगी नहीं आपके पास बैठ के आपको, ठीक है, लेकिन आपका जो पीपीटी में से जिस वजह से वो पढ़ा रही है उसमें बहुत अच्छे नोट्स होते हैं। अगर आपकी टीचर स्कूल में आपको स्कूल में पढ़ा रही है, टीचर के पॉइंट्स मार्क करते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाओ, मैम के साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमेशा खुद से करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन काफ़ी लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, खुद से नहीं करते, सॉल्यूशन देखते हुए करते हैं। पहले खुद से ट्राई करो, फिर एक और बार सॉल्यूशन देख के उसको करो, चेक करो फिर आपने करा है वो सही है कि नहीं। इससे क्या होगी, आपकी आंसरिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। देन एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के ऊपर जाओ, जो वर्कबुक के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं, नहीं है आपके पास ऑनलाइन सर्च करो एग्जाम्पलर क्वेश्चन, जो भी चैप्टर का आपको चाहिए आपको मिल जाने वाला है। सैम्पल पेपर या फिर वर्कशीट्स को सॉल्व करना ना भूलिए। यू गाइस नीड टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स और वर्कशीट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर। सैम्पल पेपर कर लो या फिर सिर्फ वर्कशीट कर लो। एक काम करो, सैम्पल पेपर पहला, वर्कशीट हो गया दूसरा, और एग्जाम्पल क्वेश्चन तीसरा। तीनों में से कोई है ना एक भी कर लोगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की। एक और बात जो कहूँगी मैं, प्रैक्टिस इज द की, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, प्रैक्टिस इज द की, साइंस में भी, तो तरह तरह के क्वेश्चन आप देखोगे और तरह तरह के क्वेश्चन को तरह तरह से आप समझने की कोशिश भी करोगे। ये था आपका पूरा प्रोसीजर एक चैप्टर को पढ़ने का। अब आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए। उसके बाद एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो। असाइनमेंट्स हमेशा कंप्लीट कर रहे हैं वो बच्चे जो इतने ज़्यादा आलसी होते हैं कि अपने होमवर्क नहीं कंप्लीट करते साइंस के, गाइज गो एंड गेट योर असाइनमेंट्स राइट अवे एंड कंप्लीट इट नाउ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असाइनमेंट्स आपको क्वालिटी असाइनमेंट चाहिए तो वर्कशीट सॉल्व करो। वर्कशीट हमेशा सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज उसमें क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे होंगे। विद दैट आपका एक 360 डिग्री का प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर प्लान द कॉन्सेप्ट यू हैव टू स्टडी बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। आप गाइस आप फॉर एग्जांपल क्लास 8 में हो, क्लास 8 में आपके जितने चैप्टर्स है, क्लास 8 में आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर नहीं है, ठीक है। आपका क्लास 8 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर तो है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर तो है, पर वो लिमिटेड है, उससे आगे का आपको पढ़ना है। इसको बोला जाता है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। मतलब यार टेक्स्ट बुक में हो ना हो आपके आगे के ग्रेड्स में आ रहा है। क्लास 8 में सेल का चैप्टर है, उसको क्लास 9 के सेल तक पहुंचा दो एक्सटेंड करके एकदम, ठीक है। टिश्यूज का आप पढ़ लो, आप ये सारी चीज़ें जो होती है ना, आप बॉडी सिस्टम्स पूरा कंप्लीट कर लो एकदम, तो क्लास 10 में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। तो ये इसको बोलते हैं बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। अब आपको पहले कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं कि हाँ मैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का एक चैप्टर, सेल पढ़ूंगा, टिश्यूज़ एक चैप्टर है जो मैं पढ़ूंगा, फिर मैं ना एटम्स के बारे में थोड़ा केमिस्ट्री पे भी ध्यान दूंगा, थोड़ा एटम्स के बारे में पढ़ूंगा, एकदम मोशन पढ़ूंगा, ठीक है। फिर आपने थोड़ा लाइफ प्रोसेसेस पढ़ूंगा, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पढ़ूंगा। आपने इतना कॉन्सेप्ट्स निकाल लिए। अब ये कॉन्सेप्ट्स निकालने के बाद इनको प्लान करो डे बाय डे, डेट के हिसाब से अपनी डायरी में, और उस प्लानिंग के हिसाब से चलो। आई एम टेलिंग यू, इसके बाद आपको साइंस में पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कुछ और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड देन वी आर गोइंग टू एंड द सेशन शॉर्टली। पीपल स्टडी बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि टेक्स्ट बुक में हो ना हो वो चैप्टर, स्टडी बियॉन्ड टेक्स्ट बुक इज इम्पॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक में हो ना हो वो चैप्टर, बट स्टडी बियॉन्ड टेक्स्ट बुक इज इम्पॉर्टेंट। तो यार ये ज़रूर याद रखना, बुक से पढ़े, हमेशा पढ़ना। इसीलिए मैंने एक सीरीज़ भी स्टार्ट करी थी बियॉन्ड एनसीईआरटी। तो गाइस अगर आप 6 to 8 ग्रेड में हो तो बेस्ट सीरीज़ है आप सबके लिए, तो प्लीज़ उसके वीडियोस जाके ज़रूर देखिए। कीप अ नोट ऑफ चैप्टर्स ऑफ फर्दर ग्रेड्स। गाइस देखो, ये मैं आपको एक बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल दूंगी। मैं ग्रेड 8 में हूँ, मैंने ग्रेड 8 की पूरी साइंस कंप्लीट कर ली है। लॉकडाउन 2 मंथ्स का था, या मतलब ग्रेड 6 to 8 का पूरा भी साइंस अगर आपको ख़त्म करना है तो 2 महीने तो
आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गए, काफ़ी है, मतलब ज़्यादा नहीं हो गए, काफ़ी है। 2 से 3 महीने में आप पूरा कंप्लीट कर लोगे इनकी समरी, हर चीज़, तो इतने ज़्यादा इजी होते हैं। फिर आई मूव्ड ऑन, आई एम इन ग्रेड 8 राइट अवे। मैंने सोचा लेट मी मूव ऑन टू ग्रेड 9। मैंने ग्रेड 9 का साइंस देखा, उसमें मैंने चैप्टर्स पढ़े, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, व्हाई डू वी फॉल इन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फूड रिसोर्सेज के बारे में। मैंने मतलब चैप्टर सारे नहीं पढ़े हैं, कुछ कुछ पढ़े। देन आई वॉज हैविंग एन आइडिया दैट मैं आगे जिस ग्रेड में जाऊँगी, 9 ग्रेड में, उसमें किस तरह के चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि मुझे पता है ग्रेड 9 में मेरे को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि पूरा सेल के ऊपर है वो चैप्टर आया, तो ग्रेड 8 का सेल में बहुत अच्छे से पढ़ूंगी और उसका भी मुझे आएगा। मतलब एडिशनल आप ग्रेड 8 में भी अपने आप का फायदा करा रहे हो, क्योंकि अगर आपने ग्रेड 9 का पढ़ रखा है तो ग्रेड 8 का क्या होगा, आपके लिए हलवा चटनी ही होगा ना, ऑफ कोर्स पीपल। तो इस तरह से यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योर चैप्टर्स ऑन योर फर्दर ग्रेड। अब यार ग्रेड 8 में हूँ मैंने ग्रेड 10 का एक चैप्टर का 50% पढ़ा है, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब मुझे आइडिया है ना कि ग्रेड 8 में मैंने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ा, ग्रेड 7 में मैंने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा, तो मैं ग्रेड 10 में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस भी ढंग से पढ़ रही हूँ। थोड़ा आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना है कि हाँ आप ग्रेड 10 के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो, बट एटलीस्ट 50% तो रखो, ताकि आप ग्रेड 10 में जाओ तो सिर्फ 50% वेटेज पढ़े। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ा मैंने, वो चैप्टर सारे बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि मेरे बेस अच्छे हैं, मेरे तो बेस अच्छे हैं, तो चैप्टर्स मेरे लिए ऑफ कोर्स इजी होंगे। तो यार इस तरह से मैंने, अब देखो साइंस में 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक होता है मोशन, वो तो हमेशा क्लियर रखना, भले आपको फिजिक्स पसंद हो ना हो, पर मोशन टॉपिक क्लियर रखना। उसमें आप अगर वो आपका डूब गया तो पूरी फिजिक्स आपकी डूब जाएगी, वो मैंने पढ़ रखा है। केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक होता है पीपल एटम, वो भी आपका डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि वो डूब गया तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपकी फिर से डूब रही है, तो एटम क्लियर रखोगे। बायोलॉजी का सबसे बेसिक होता है आपका सेल, अब सेल डूब गया तो पूरी की पूरी बायोलॉजी आपकी डूब जाएगी। मतलब ये 3 कॉन्सेप्ट्स ना एटलीस्ट आप क्लियर कर लो, ग्रेड 9th एंड 10th में हो या फिर ग्रेड 6 to 8 में हो। ग्रेड 6 to 8 में हो तो इनके बारे में थोड़ा एटलीस्ट आप एटम का डेफिनेशन बोल पाओ, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें एटलीस्ट एक्सप्लेन कर पाओ। पीरियोडिक टेबल के बारे में आप जानते हो, सेल के बारे में जान रहे हो, मोशन क्या है उसके बारे में जान रहे हो, आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, हर वो चीज़ जान रहे हो, ठीक है। तो एटलीस्ट वो मैटर करता है। तो यू हैव टू कीप अ नोट ऑन चैप्टर्स जो आपकी फर्दर ग्रेड में आ सकते हैं, उन पे हमेशा नोट रखना, उन पे हमेशा अपनी एक नज़र बनाए रखना। अटेंड लाइव क्विजेस इन रियल टाइम। अब इससे क्या होगा, अब अगर आप लाइव क्विजेस रियल टाइम में अटेंड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और आंसरिंग स्किल्स इंप्रूव ही नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ने में मज़ा तो आएगा ही, पढ़ने में मज़ा आएगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो सेम क्वेश्चन अगर 2-3 बार आपने उस चैप्टर का क्विज खेल लिया तो आपका क्वेश्चन रटे हो जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करने के लायक हो जाओगे। तो यार ये चीज़ है ना हमेशा करनी है। यू हैव टू अटेंड लाइव क्विजेस, ठीक है, इन रियल टाइम टू चेक योर परफॉर्मेंस एज वेल। अब कहाँ पे मिलेंगे लाइव क्विजेस रियल टाइम में? तो गाइस फिर से मैं वही बोलूँगी, मेरी वीडियो देख लेना, बेस्ट एजुकेशनल चैनल फॉर ग्रेड 6 to 8 और बेस्ट एजुकेशनल चैनल फॉर ग्रेड 9 to 8। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, आप रिग्रेट नहीं करोगे वो 2 वीडियोस देखने के बाद, नॉट एट ऑल। इम्प्रूव योर आंसरिंग स्किल्स, अपनी आंसरिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है आप सबको, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट, मतलब जब आप आंसर कर रहे हो तो क्वेश्चन आपको कितना भी मतलब उसका एक्सप्लेनेशन आता हो, बट जब तक आपकी आंसरिंग स्किल्स अच्छी नहीं होगी ना, तब तक आप उसको अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे। मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के हिसाब से डायरेक्टली लॉजिक लगा के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। Yeah guys, here we are done with this. Thank you guys for staying till the end of the video. Thanks a lot. If you still have any questions, then मेरे को doubtful form में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सजेशन फॉर्म में आप अपना सजेशन लिख सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, चेक करना मत भूलना। Do not forget to subscribe to my channel, like this video and share this video as much as possible. Hit on that like button people, and do not forget to hit on that bell icon as well, so that you get notified each time I come live and upload another video. So guys, okay, before ending let me tell you that go and study science. You have to study science with fun, with like हमेशा उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। एंड दैट्स इट अबाउट द सेशन। बाय गाइज, लेट्स मीट ऑन अनदर